Good morning, friends. In the last class, we have discussed about the economic planning in India. We have also discussed the structures of Planning Commission and the structure of the NDC. Both the organizations are dedicated to develop my country. Both the organizations are non-constitutional and they are the think tank of the government. They suggest how to make growth, how to assure growth in our economy. Now we start with the first planning. You know that in India, whatever development has taken place, whatever growth we have seen in our economy, these all through the Planning Commission and the NDC. That's why it is imperative for us to know through which planning we have got the momentum of growth and development. The first 5-year plan in India, the model of planning is, its duration is 5-year model, and the first 5-year plan was implemented on April 1, 1951. 50 नहीं बल्कि 51 and ended on 31st March 1956. In the history of planning, this was the first plan. This plan began amidst 3 problems. When the first planning was started, India was facing with the 3 major problems, and these problems were very hyper and very dire. The first problem was influx of refugee, second is food shortage, and third is mounting inflation. Influx of refugee means after the Second World War, many refugees came to India. It was really a very difficult problem to tackle with this situation. The another problem was food shortage. As we know that we were ruled over by the Britishers, we had lack of infrastructure and our productivity is very low. Our agriculture sector is not developed. We had to face many socio-economic difficulties and problems such as the food crisis also. It was also the major crisis before the India and Indians. And the third problem is mounting inflation. Mounting inflation means there was the price rising, problem of price rising. Why the price rising? Because lack of productivity, lack of production. India had to face inflation also because supply side was poor and demands are also greater. In that case, we had to face the dire problem of food crisis and inflation also. These were the 3 major problems amidst we have started the first Planning Commission. It was based on Harrod-Domar. It is a very important point to be noted that in many examinations, various examinations, particularly for the civil service examinations, this PET questions is generally asked, who gave the model of the first Finance Commission? The first Finance Commission was modeled by Harrod-Domar. He was the American economist, and on this model the planning was chalked out. So these 3 points to be noted. You can note these points. At the time of the first planning, implementation of first 5-year plan, what were the problems? The problem is influx of refugee, second food shortage, and third is mounting unemployment, mounting inflation. These were the very serious problems, and this plan was based on the model given by Harrod-Domar model पे था. The third point to be noted is
Mr. Jawaharlal Nehru was the chairperson and Gulzarilal Nanda was the deputy chairperson. निश्चित रूप से we have already discussed that who will be the chairperson of the planning commission. Undoubtedly we have already discussed whoever the prime minister will be, whoever the prime minister of India जो भी होगा will be automatically the chairperson of the planning commission. तो but natural था कि मिस्टर नेहरू became the chairperson of the planning commission. मतलब पहली पंचवर्षीय योजना का हेड कौन था, कौन बना? तो निश्चित रूप से ये बेसिक बात है कि द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर वाज मिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू. दैट इज वाई ही वॉज द फर्स्ट chairperson of, or he was the chairperson of the first planning commission. On the other hand, there was a provision of deputy chairperson. तो बहुत ज़रूरी होता है कभी कभी कि चेयरपर्सन से ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप डेप्टी चेयरपर्सन के बारे में जानें. मिस्टर गुलजारीलाल नंदा बिकेम द डेप्टी चेयरपर्सन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, फर्स्ट प्लानिंग कमीशन. तो निश्चित रूप से आप यहाँ पे 2-4 पॉइंट आप लोग नोट कर सकते हैं. यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू चेयरपर्सन थे और डिप्टी चेयरपर्सन बने कौन? गुलजारीलाल नंदा. नाउ सी द मेन ऑब्जेक्टिव्स. व्हाट वर द मेन ऑब्जेक्टिव्स? इनके लक्ष्य क्या थे? फर्स्ट प्लानिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, क्या टारगेट्स थे? प्लानिंग कमीशन के द्वारा क्या टारगेट को उसने चॉक आउट किया था? The first was to increase the production capacity and mitigate economic and social disparity. तो निश्चित रूप से our country was overproducted, under production. In our country there was under production of food and other, and there was social and economic gap, disparity. The disparity was very large, economic and social disparity. तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो था, हाउ टू इंक्रीज प्रोडक्शन. इफ वी वर एबल टू इंक्रीज मोर एंड मोर प्रोडक्शन, undoubtedly we will in a condition to mitigate the economic and social disparity from the society. So the focus was, the emphasis was how to increase more and more production and productivity in our particularly agriculture sector में. और दूसरी मोटिव था कि जो सोशल एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटी था, निश्चित रूप से देयर वाज मच गैप बिटवीन द सोसाइटी, डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी. द वन हैंड, on the one hand people are rich, on the other hand the people are very poor. So this gap was needed to bridge up. The second is to construct India on economic front after deterioration of the Second World War. तो दूसरी चीज़ थी कि इकोनॉमिक मोर्चे पे, ऑन इकोनॉमिक फ्रंट पे, कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, नो डाउट आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार द इंडियन इकोनॉमी वाज इन अ वेरी वेरी बैड कंडीशंस. द इकोनॉमी वाज क्रैक डाउन, द इकोनॉमी वाज क्रीपिंग, वेरी पेरिलस कंडीशंस. सो टू अपलिफ्ट द इंडियन इकोनॉमी, the planning commission was implemented. और जो पहली योजना में ये टारगेट था कि जो डिटेरिएशन हुआ है उसको कंपनसेट करेंगे हम लोग, उससे आगे बढ़ेंगे. मतलब जो कमी, जो बर्बादी हुई, इकोनॉमी को नुकसान हुआ, उसको ठीक करेंगे. एंड द थर्ड मोटिव इज टू चेक द इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी. Some of you ask me, what is the inflationary tendency? Inflationary tendency means the tendency, the situation in which the price rises are going on. There is continuously price rising. This tendency is called
inflationary tendency. Really, this tendency is very painful for the common people, for the middle class, for the low class. निश्चित रूप से उनके लिए मुश्किल होता है. इसलिए गवर्नमेंट को क्या थी, इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी को चेक करना, कंट्रोल करना एक बहुत बड़ा मकसद था. एंड तो इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी वाज द प्रॉब्लम in Indian economy. That's why it should be controlled that time. तो गवर्नमेंट की ये भी प्रायोरिटी थी कि फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू इंक्रीज मोर एंड मोर प्रोडक्शन. विदाउट प्रोडक्शन यू कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डिस्पैरिटी. इफ द प्रोडक्शन occurs, no doubt the economic stability will gain and the social disparity can be mitigated. The second was undoubtedly after the Second World War, the Indian economy was in a very poor shape and inflationary tendency was also the integral part of Indian economy. तो ये तीनों चीज़ को क्या करना था, सरकार को कंट्रोल करने थे, उसको ठीक करने थे, चेक करने थे. नाउ अब ये देखते हैं कि एक्सपेंडिचर क्या था पूरे प्लानिंग में. तो एस्टिमेटेड जो एक्सपेंडिचर वाज 2378 crore. It was the estimated expenditure during the for 5 year, means for first 5-year plan. But the actual expenditure amounted 1960 crore only. आप देख सकते हैं कि पहली योजना में कितनी की योजना हमारे देश में बनी. और आज जब हम आप लोग को बात करेंगे, जब 12वीं योजना, 11वीं योजना, 10वीं योजना के बारे में, तो देखिए कितना शार्प इंडिया के अंदर डेवलपमेंट हुआ. हाँ बिल्कुल है कि हम बहुत खुश हों या नहीं हों, बट वी आर सेटिस्फाइड विद द पेस ऑफ द इंडियन डेवलपमेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन. द प्रॉब्लम्स वाज वेरी लार्ज इन इंडिया. We had minimum resources. Our resources are very limited. We lacked capital also. Our technologies capacity was also very weak. Within the limited resources, we have tried and we have done good job to transform the Indian economy. So, if someone think that we have not grown or development has not taken in India, it is totally a misleading concept. Whoever delivers this concept, India विकास किया है, no doubt, बहुत विकास किया, पर हाँ अभी बहुत विकास करने की ज़रूरत है. फिलहाल हम पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं हो सकते, क्योंकि हम आज भी बेसिक प्रॉब्लम से बहुत जूझ रहे हैं. पर हमारी बहुत पॉपुलेशन कैपेसिटी थी, जिसके कारण प्रॉब्लम्स को समाधान करने के बावजूद भी प्रॉब्लम्स हैं. द टारगेट तो खर्च टोटल हुआ 1960 करोड़ रुपीस ओनली, एंड द टारगेट ग्रोथ रेट वाज 2.1%, गेन किए 3.6%. तो आप कह सकते हैं कि दिस प्लान वाज सक्सेसफुल. लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ख्याल से आप बहुत सक्सेसफुल नहीं मान सकते, क्योंकि हमारी जो टारगेट थी बहुत मिनिमम था 2.1%. चलो ठीक है, इट वाज सेटिस्फैक्टरी. इन दिस प्लान, तो ये डेटा आपके लिए ज़रूरी है कि टारगेट ग्रोथ रेट था 2.1% और गेन किया गया 3.6%. In this plan period, during the first 5-year plan, several projects were started, such as Bakra Nangal project, Damodar project, Valley project, and Hirakund river projects. These 3 projects were started.
3 प्रोजेक्ट हमारे पहले योजना में शुरू किया गया। नो डाउट दीज प्रोजेक्ट्स वर वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इन दिस प्लान ICOR was adopted in this plan। अब ICOR होता क्या है? इंक्रीमेंटल, इसको कहते हैं इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। ICOR का फुल फॉर्म होता है इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। दिस मॉडल वाज गिवन बाय W. Rostow। Rostow was an American economist who gave the theory of W. Rostow gave the theory of ICOR, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। जानना चाहिए ICOR होता क्या। अब देखें ICOR क्या होता है। तो रोस्टो का मानना है कि इफ देयर इज प्रोडक्शन ऑफ 1 यूनिट द गवर्नमेंट इज टू इंक्रीज 1:4 सो दैट अगले साल वो 1 से 4 गुना प्रोडक्शन हमारा बढ़े। ओनली देन we will face the challenges which will come ahead। तो 1:4 का मॉडल इसने दिया कि 1:4 का मीन्स इन केस ऑफ 1% प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और 1% प्रोडक्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑल्सो। 1:4 का इन्वेस्टमेंट की बात इसने कहा है, इसको ICOR कहा जाता है और यह W. Rostow ने दिया था। मोटे तौर पे इसमें 4-5 पॉइंट जरूर याद रखना है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स थे। 1, 2, 3 प्रॉब्लम्स: फूड शॉर्टेज, माउंटिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लक्स ऑफ रिफ्यूजी, दी मॉडल गिवन बाय हैरोल्ड डॉमर, मिस्टर नेहरू वाज दी चेयरपर्सन, गुलजारी लाल नंदा वाज दी डिप्टी चेयरपर्सन, और जो ऑब्जेक्टिव्स थे उनको ध्यान रखना है क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में ये पॉइंट्स हमें लिखना पड़ सकता है। और ये देखना है कि हमारा जो एक्सपेंडिचर एस्टिमेटेड था वो 2378 था करोड़ रुपीस और रियल एक्चुअल इन्वेस्टमेंट हुआ 1960 करोड़ रुपीस। ग्रोथ रेट 2.1%, गेन किया 3.6%। 3 प्रोजेक्ट्स हमारे खुले शुरू हुए, भाखरा नंगल, दामोदर वैली एंड हीराकुंड परियोजना। एंड ICOR was adopted। This model was given by W. Rostow। Now see the second 5-year plan। दिमाग में एक बात और कंसेप्ट रखना होगा कि जो भी प्लानिंग कमीशन हमारे देश में शुरू हुआ या होता है वो फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल होता है हमारे देश में। यू नो वेरी वेल। इन इंडिया दी फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल। जैसे अभी बजट पेश हुआ है 1 फरवरी को, तो ये जो बजट में हमने पार्लियामेंट से जो खर्च के लिए एक प्रस्ताव रखा ये लागू होगा 1 अप्रैल से। Means the financial year in India starts from April 1st and end on 31st March। In the same manner, any planning 5-year plan which was started usually उस हमेशा स्टार्ट हुआ ऑलवेज 1 अप्रैल से हुआ। ठीक सेकेंड 5-year plan was started on April 1st 1956 to and end on 31st March 1961। ये दूसरी पंचवर्षीय योजना है। अब क्या है कि सारे पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में जैसे हु वाज द चेयरपर्सन, हु वाज द डिप्टी चेयर जानने जरूरी नहीं है आपके लिए, क्योंकि पहली थी इसलिए जानना जरूरी है। लेकिन बाकी के
भी दैट टाइम मिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज द प्राइम मिनिस्टर, पर वो बहुत जरूरी नहीं है वहां पे। तो ये जानना है कि व्हाट वाज द पीरियड ऑफ द सेकेंड 5 ईयर प्लान फ्रॉम 56 to 61, and objectives were, we have to see the objectives. What were the objectives in this plan? The main objective was to accelerate the process of industrialization. Industrialization was the major focus in this plan, so that development of India's economy acts on firm base. Without industrialization, the modernization or transformation will not take place in India. That is why in the first plan the agriculture was the main focus, and in the second plan the industry was the main focus. In 1956 the industrial policy was declared by Pandit Jawaharlal Nehru, and it was based on socialistic pattern of society. What is socialistic pattern? सोशलिस्टिक मीन्स समाजवादी जो व्यवस्था होती है उस पे ये योजना बेस्ड थी। इन दिस पॉलिसी द टोटल इंडस्ट्री वर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट सवाल आ गया यहाँ पे। सोशलिस्टिक प्लानिंग पैटर्न मीन्स समाज का उन चीज़ों पे अधिकार हो, समाजवादी हो, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर भी हो जिसमें सोसाइटी का शेयर हो, उनकी रोल हो, एंड इन दिस इंडस्ट्रियल पॉलिसी द इंटायर इंडस्ट्रीज वर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। द फर्स्ट वाज in Schedule A, 17 industries were included. For the Schedule B, 12 industries were included, and Schedule C, rest all industries. तो शेड्यूल ए में टोटल इंडस्ट्रीज कितने थे? 17 इंडस्ट्रीज थे। बी में 12 इंडस्ट्रीज थे, और सी में बाकी के सारी इंडस्ट्री को किस में रखा गया? शेड्यूल सी में रखा गया। It lays emphasis on industrialization, means it was the motive to increase production of iron and steel, heavy chemicals including nitrogen, fertilizers, and development of heavy engineering and machine building industry. So this was the motive of the second 5-year plan. बड़े बड़े उद्योग धंधे, बड़े बड़े उद्योग लगाए गए हमारे देश के अंदर। मेनली 3 major steel plant were set up, इस योजना में लगाए गए 3। फर्स्ट राउरकेला स्टील प्लांट, सेकेंड भिलाई स्टील प्लांट एसोसिएटेड विथ यूएसएसआर, एंड दुर्गापुर स्टील प्लांट एसोसिएटेड विथ ब्रिटेन की सहायता से दुर्गापुर में बना। हाल में अभी भी ये सारे
प्लांट जो है, यूनिट्स हैं, वो अच्छे से प्रोडक्शन दे रहा है। तो 2 प्लान की हमने चर्चा कर लिया। अब है थर्ड 5 ईयर प्लान। इट्स टेन्योर इज 61 to 66। The basic aim of this plan was to push the economy up to the take-off stage। अब प्रश्न होता है टेक ऑफ स्टेज क्या होता है? टेक ऑफ स्टेज मीन्स होता है सेल्फ सफिशिएंट और सेल्फ रिलायंट, जिसको आत्मनिर्भर या आप स्वयं स्फूर्त भी कह सकते हैं। स्वयं स्फूर्त मीन्स कि in this plan the target was that the Indian economy may get the take-up stage. Take-up stage means self-reliant, but the result was not only zero but negative due to some natural and artificial causes। तीसरी योजना में निश्चित रूप से प्लान बनी थी देश को उड़ान भरने की, सो दैट वी कैन टेक ऑफ स्टेज, गेट टेक ऑफ स्टेज। ये टेक ऑफ स्टेज ग्रोथ का मॉडल है जी, और दिस मॉडल वाज गिवन बाय, यह मॉडल दिया है W रॉस्टो ने। W रॉस्टो का दिया हुआ मॉडल है टेक ऑफ स्टेज। बट मैंने कहा कि टेक ऑफ स्टेज का मॉडल दिया गया, बट ये टेक ऑफ स्टेज क्या, ये प्लानिंग बिल्कुल ड्यू टू सम रीजंस, काउजेस, वी विल डिस्कस नेक्स्ट, ये फेल कर गई योजना। थर्ड योजना इसमें था कि एम एट सिक्योरिंग टुवर्ड्स सेल्फ सस्टेनिंग डेवलपमेंट ग्रोथ, कि हम खुद आत्मनिर्भर बन जाएं। द मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे इनके? टू गेन सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स एंड टू इंक्रीज द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन टू सफिश द रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंडस्ट्री। मीन्स कि देश को इतने अच्छे प्रोडक्शन हो जाए, प्रोडक्शन इतना मल्टीप्लाई कर जाए और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़े, सो दैट कि वी विल इन अ कंडीशन टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पीपल, कंज्यूमर्स, टू प्रोवाइड समथिंग फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड फॉर द एक्सपोर्ट प्रमोशन। To ensure optimum utilization of the country's labor power, इसमें यही था कि जो लेबर पावर है, श्रम शक्ति हमारे देश की है, उसको मैक्सिमम ऑप्टिमम लेवल पे अधिक से अधिक आदर्शतम पॉइंट तक के हम क्या करें, उनको यूज़ करें, उनको यूज़अप करें और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को बढ़ाएं। बट द प्लांट फेल ड्यू टू फॉलोइंग कॉजेस। लेकिन जो योजना थी वो कारगर नहीं हुई। द प्लान वॉज नॉट सक्सेसफुल ड्यू टू फॉलोइंग कॉजेस। In 62 we had to fight war with China. In 1956 war with Pakistan, and during this period in 1965 to 66 में India became the victim of terrific drought which resulted famine.
India had to face the situation of hyper famine due to severe drought, and due to these causes this third year plan totally failed. That's why this very plan is called unlucky plan or failed plan. इसलिए इस योजना को हम दुर्भाग्यपूर्ण योजना या असफल योजना के नाम से भी जाना जाता है इस योजना को। तो क्लियर हो गया। वी हैव ambitions for this plan, we have targets for this plan, we wanted to grow this plan, to make successful this plan, but the situation was different. In the different circumstances, we were compelled to not to grow, but the plan was in the reverse gear due to some natural and artificial disasters and problems. तो वार तो आप समझते हैं कि वार क्या होता है। वार तो किसी भी इकोनॉमी को बहुत पीछे धकेल देता है। टेक एन एग्जाम्पल, अभी फिलहाल ले सकते हैं यूक्रेन और रसिया का वार है। तो नॉट ओनली दिस इज डिजास्टर नॉट ओनली फॉर यूक्रेन रसिया बट फॉर दोज कंट्रीज हुज रिलेशंस आर विद द यूक्रेन एंड रसिया। And when you are in with the war, the result will be very serious, and we had to face the serious results after 2 wars, international wars, and terrific drought, famine. That's why after the completion of the third 5-year plan, our policy maker did not adopted the 4th plan, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि तीनों योजना हमारी विफल हो गई। तो गवर्नमेंट ने डेयर नहीं किया फिर चौथी योजना की, क्योंकि चौथी योजना के लिए गवर्नमेंट के पास रिसोर्स नहीं था, कैपिटल नहीं था। तब यहां पे देखेंगे कि गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक एनुअल प्लान का कॉन्सेप्ट लाया। Dear Gargill, that time Dear Gargill was the economist, he suggested Mrs. इंदिरा गांधी। अब देखिए हमारे देश में अब इंदिरा गांधी का राज आ गया। 66 में आए आफ्टर द डेथ ऑफ डिमाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री। ऑन द सजेशन ऑफ Dear Gargill, मिसेस गांधी अडॉप्टेड द एनुअल प्लान। इसको किया गया और इंदिरा गांधी बनी एनुअल प्लान का। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया कि हु वाज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ द प्लानिंग एनुअल प्लान। चूँकि एनुअल प्लान इन्हीं के राज में शुरू होता है लगभग 15 साल के बाद। 66 से 67 के लिए कंसेक्यूटिव, 66 to 68 एंड 68 to 69, 68 to 69 यहाँ मेंशन नहीं है लेकिन नोट कर लेंगे। 68 to 69 3 एनुअल प्लान्स, कंसेक्यूटिव 3 एनुअल प्लान्स लगाए गए। अब ये तो आप समझ गए कि वाई वी अडॉप्टेड द एनुअल प्लान, बिकॉज आवर थर्ड प्लान वाज फेल्ड एंड वी हैड नो रिसोर्सेज, नो कैपिटल टू स्टार्ट द 5-year मॉडल प्लान। That is why we had adopted the 1-year plan and the consecutive 3 1-year plan we have adopted। तो हमने इसको कहते हैं प्लान हॉलीडे। इस पीरियड को क्या कहा जाता है? प्लान हॉलीडे कहा जाता है। आफ्टर द फेलियर ऑफ दिस प्लान, तो गार्गिल ने कहा था अब है कि एक साथ 3 5-year प्लान हमने बनाया और 1 अप्रैल 1966 66 को पहले एनुअल प्लान लागू किया गया। तो ये 3 साल का जो पीरियड हुआ 66 to 69, मतलब एक योजना नहीं वार्षिक बनी, लगातार एक 3 योजना बनी 1 साल की। एंड
दिस 3 annual plan period is called the plan holiday. प्लान हॉलिडे का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एक रेगुलर प्लान नहीं बन पाई, तीसरी योजना के बाद चौथी योजना बननी थी लेकिन नहीं बन पाई, तो वी हैव अडॉप्टेड द एनुअल प्लान हियर एंड दिस वेरी पीरियड ऑफ 3 प्लान इज कॉल्ड एनुअल मीन्स प्लान हॉलिडे बिकॉज नो रेगुलर प्लान वॉज इम्प्लीमेंटेड. ठीक है. अब देखेंगे ड्यूरिंग द प्लान हॉलिडे ग्रीन रिवॉल्यूशन टुक प्लेस इन इंडिया एंड इंडिया अचीव टेक ऑफ स्टेज. और हमें यहाँ पे टेक ऑफ स्टेज के स्टेज को हमने गेन कर लिया. क्यों गेन कर लिया? क्योंकि हमारे देश में ग्रीन रिवॉल्यूशन सफल हुआ. अब ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है पहले जानेंगे, इनका संबंध किससे है. ग्रीन रिवॉल्यूशन मीन्स इन फूड ग्रेन्स we have increased the productivity particularly in wheat and rice by the help of Mexico, or we have started 2 major programs there. पहला HYV है High Yielding Variety Program and the second is Intensive Agriculture Program. In the process of Green Revolution, the Mexican scientist Varghese Kurian, वर्गीज कुरियन नहीं, देखिए यहाँ पे भूल रहे हैं. तो मेक्सिको का वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग थे, मेक्सिको के कृषि वैज्ञानिक. एंड द अनदर इज मिस्टर MS स्वामीनाथन, इंडियन एग्रीकल्चरिस्ट. बोथ have done much more to make green revolution successful in India, and due to the efforts of these scientists, green revolution succeeded in our country and we were in a condition to increase the productivity in agriculture sector, and we gained surplus agriculture products, and India got the take up stage during this plan holiday. मतलब हमारी प्लान हॉलिडे बड़ी सफल रही. ग्रीन रिवॉल्यूशन देश के अंदर आया, हरित क्रांति आई और भारत एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बन गया फूड ग्रेन्स के मामले में. टेक अप स्टेज को हमने गेन कर लिया. It was the achievement. तो आप नॉर्मन बोरलॉग को भी जानिए, MS स्वामीनाथन को भी जानना है ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है. नॉर्मन बोरलॉग was the Mexican agriculture scientist who gained उनको मिला नोबेल प्राइज. एकमात्र कृषि वैज्ञानिक जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है आज तक. अब देखेंगे 4th 5-year प्लान 69 to 74. अब देखेंगे यहाँ पे when our plan holiday or the 3 annual plans become very successful, now the time has come to adopt the regular plan, and for 69 to 74 we have adopted the 4th 5-year plan. It was based on Guardian strategy with special focus on the ideas of growth and stability and progress towards self-reliance. ध्यान देंगे क्या कह रहा है. Growth and on stability means the growth, we have to increase the growth, GDP growth, and the growth should be stable also. फ्लक्चुएट ना करें, एक ऐसा ग्रोथ हो स्टेबल है. एंड प्रोग्रेस टुवर्ड सेल्फ रिलायंस, और हम जो तरक्की करें और इतनी तरक्की करें कि हम सेल्फ रिलायंस को यानी आत्मनिर्भर भी बने. इट वॉज द फोकस इन द 4th 5-year प्लान. क्या था? ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेस टुवर्ड्स द सेल्फ रिलायंस. टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स फॉलोइंग टारगेट्स वेयर. तो कैसे हम इसको गेन करते हैं? हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स थे इन्हें गेन करने के लिए
तो टू इंश्योर ग्रोथ रेट ऑफ 5.7% पर एनम, यानी टारगेट रखा गया था कि 5.7% हम प्रति वर्ष ग्रोथ रेट को गेन करें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ग्रोथ रेट को गेन करें। टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द मनी सप्लाई फैक्टर्स गवर्निंग विथ अ व्यू टू स्टेबलाइज द प्राइस लेवल ऑफ द कंट्री। प्राइस लेवल को कंट्रोल करने के लिए मनी सप्लाई को कंट्रोल करना होगा। इन इंडिया हु कंट्रोल्स रेगुलेट द मॉनेटरी सप्लाई? You know, the RBI regulates and controls the supply of money. It has monopoly to take all types of steps for the mobilization of money in our economy. So this was also the motive to control if the money is properly controlled or regulated. In that case, we will in a position to stabilize the price level in the country. And if the money is not properly checked or controlled, regulated, it will also pressurize the prices. It can create inflation, it can stabilize the market. That's why this was the major focus on to control and regulate the money supply. Third, to encourage the production of the commodities of general consumption on which the consumer spends on large portion of his income. तो प्रोडक्शन को बढ़ाना निश्चित रूप से, विदाउट इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन हाउ कैन वी ग्रो? तो प्रोडक्शन को बढ़ाना था, कमोडिटी को, ऑफ जनरल कंजम्पशन ऑन विच द कंज्यूमर स्पेंड ऑन लार्ज पोर्शन ऑफ हिज इनकम। क्योंकि तब क्या था कि हमारे देश में लोग की जो कमाई था उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा उसके कंजम्पशन पे चला जाता। दैट टाइम प्रोडक्शन कम थे तो प्राइसेस ज़्यादा थे। तो प्राइस को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो कमोडिटीज है विच आर कंज्यूम्ड बाय द जनरल मासेज एंड जनरल people, means general consumption in the goods, the commodity which are in general consumption, that should be increased and multiplied. If we don't multiply or increase the productivity, the people will always feel very difficulty, because उनका एक मेजर इनकम जो होगा वो कंजम्पशन के वस्तुओं पर उनका खर्च होगा, so that they will not grow, they will not develop, they will not transform. And to increase more and more एम्प्लॉयमेंट, और एम्प्लॉयमेंट को भी बहुत ज़्यादा बढ़ाना था, ये मोटिव था। फिफ्थ था टू इंश्योर सोशल कंट्रोल ऑन बैंक्स। बैंक पर सोशल कंट्रोल, यहाँ पे एक बहुत बड़ी बैंकिंग सेक्टर में बहुत बड़ी एक सुधार कहो, क्रांति कहो, या जो कहो, बदलाव कहो, यहाँ लाया गया। इंडिया के हिस्ट्री में, बैंकिंग हिस्ट्री में, इट वाज द फर्स्ट टाइम, पहली बार हुआ कि बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ। बैंक का नेशनलाइजेशन 19 जुलाई 1969 को, मतलब कि टू इंश्योर सोशल कंट्रोल ऑन बैंक्स मीन्स द बैंक वॉज द पर्स ऑफ the banks were the purses of the rich people in India, and the banks did not provide services to the common people or middle class or आम आदमी के लिए वह नहीं था। तो इस पीरियड में गवर्नमेंट ने क्या किया, बैंक में एक बड़ा सुधार लाया और बैंक का नेशनलाइजेशन किया गया 19 जुलाई 69 को। देश के 14 बिग बैंक्स, 14 बड़े बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ है, एक दो नहीं, 14 बैंक का। एंड द क्राइटेरिया ऑफ द नेशनलाइजेशन वाज, इसमें जो क्राइटेरिया रखा गया था नेशनलाइजेशन का, कि जिस बैंक की प्रॉपर्टी एसेट्स 50 करोड़ है
रुपीस का कीमत का है, उन बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया। तो लगभग 14 बैंक्स इसमें आए। आज बैंक का डीनेशनलाइजेशन किया जा रहा है और लगातार इस प्रक्रिया में भी है। अभी हमारे देश में टोटल लगभग बहुत सारे बैंक्स थे, लगभग 19 बैंक नेशनलाइज था, आज घट करके लगभग 11 और प्लस SBI लगभग 12 बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक रह गए। मतलब उसमें अब प्राइवेट सेक्टर का वो हो गया, पार्टिसिपेशन बढ़ गया। और नेक्स्ट था टू एस्टैब्लिश इकोनॉमिक सोशल इक्वलिटी एंड जस्टिस इन सोसाइटी, और सामाजिक इक्वलिटी और जस्टिस को सोसाइटी में बढ़ाना था। ये भी मोटिव थी हमारा। तो नीचे में देखिएगा दिया भी है कि ड्यूरिंग दिस प्लान 14 मेजर कमर्शियल बैंक्स वर नेशनलाइज्ड ऑन 19 जुलाई 1969 को हमारे देश का लगभग 14 बैंक्स नेशनलाइज किए गए थे। नेक्स्ट देखेंगे 5th 5-year प्लान। इसकी जो ड्यूरेशन है 74 to 79 है, यानी अब आपका जो प्लानिंग कमीशन जो है अपना 5-year प्लान है उसको रेगुलर कर दिया लगभग। अब इसमें देखेंगे क्या कि दिस प्लान वाज अडॉप्टेड इन कमेंस्ड इन ऑन April 1st 1974 और ये 79 में फिनिश होना था, इसका पीरियड था 79 में वो फिनिश होगा। मतलब बट नेचुरल है कि 5 years की योजनाएं हैं तो 5 साल चलेगी और 5 साल के बाद फिर क्या होगा, वो योजना का पीरियड पूरा होगा, फिर दूसरी योजनाएं आएंगी। लेकिन कुछ नाटक हुआ है यहाँ पे, इमरजेंसी इसी पीरियड में लगा देश में, इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया गया था आपातकाल। एंड आफ्टर इमरजेंसी इंदिरा गांधी लॉस्ट द पावर गेम, इलेक्शन हार जाती है 77 में। एंड द फर्स्ट टाइम द नॉन कांग्रेसी गवर्नमेंट केम टू पावर। पहली बार कोई सरकार बनती है जो नॉन कांग्रेसी होता है देश के अंदर, नेम्ड बाई जनता पार्टी गवर्नमेंट। इस पार्टी का नाम था जनता पार्टी गवर्नमेंट एंड लेड बाय मोरारजी देसाई। ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। और इसने मोरारजी देसाई के बारे में एक और फैक्ट जान लीजिए आप, आगे हम बताएंगे आपको। इसने अब तक के भारत के वित्त मंत्री के रूप में सबसे अधिक बार बजट पेश किया, 10 टाइम्स इसने बजट पेश किया। जो इन द हिस्ट्री ऑफ बजटरी सिस्टम इन इंडिया इट इज द रिकॉर्ड। कि आज भी प्रश्न किया जाता है कि भारत में कौन ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर है भारत का जो सबसे अधिक बार बजट पेश किया है, एंड ही वाज मोरारजी देसाई। एक और भी इनके बारे में बहुत अनोखी बात है, यूनिक बात है कि ऑन हिज बर्थडे ही प्रेजेंटेड 2 times यूनियन बजट। 2 बार तो अपने बर्थडे के दिन हुआ, वो भी बर्थडे इनका कब है भाई, 29 फरवरी को है। यूनिक बात तो लगता है ना। तो इसी मोरारजी देसाई ने चूंकि बने प्राइम मिनिस्टर जनता पार्टी की सरकार में, एंड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 1 year, the 1 year जनता पार्टी गवर्नमेंट लेड मोरारजी देसाई लेड जनता पार्टी गवर्नमेंट adopted the next 5-year plan known as the 6th 5-year plan। तो इसने क्या किया, 6ठी योजना लागू कर दिया मोरारजी देसाई ने। मतलब 78 में योजना खत्म कर दिया इंदिरा गांधी की। तो इन योजना में क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे जरा गौर कर लें। टू अचीव सेल्फ रिलायंस एंड अडॉप्ट measures for raising the consumption standard of people living below the poverty line।
तो क्या था कि सेल्फ रिलायंस को गेन करना है एंड एडप्ट मेजर्स फॉर कि रेजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल जो बीपीएल के दायरे में है, बिलो दी पॉवर्टी लाइन है, उनके स्टैंडर्ड लेवल को, लाइफ स्टैंडर्ड को बढ़ाना, ये था टारगेट। सेकंड था टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति को बढ़ाना, कंट्रोल करना, बढ़ाना कह रहे, सॉरी, बढ़ जाएगा तब तो दिक्कत होगा ना। कोई भी देश जनरली मुद्रास्फीति को बढ़ाना नहीं चाहती है, लेकिन हाँ एक बात भी है कि यदि इफ देर इज रिसेशन इन द इकोनॉमी और देर इज डिप्रेशन इन द इकोनॉमी, इन दैट केस द गवर्नमेंट ट्राइज टू इंक्रीज इन्फ्लेशन, इंटेंशनली इंक्रीज इन्फ्लेशन को वो बढ़ाना चाहती है, क्योंकि जब कीमतें बिल्कुल गिरी होना तो थ्रू दी मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी सरकार चाहती है कि थोड़ी सी दाम बढ़े, कीमतें बढ़ें। अब क्यों बढ़े नहीं बढ़े हम अगले टॉपिक में ज़रूर डील करेंगे, लेकिन अगर वो बहुत नीचे गिरी हैं तो बढ़ाना। लेकिन यूजुअली अगर इन्फ्लेशन एक लेवल में हो तो हम इन्फ्लेशन को उस लेवल से आगे बढ़ने नहीं देना चाहते, वो कंट्रोल रहे। इन रिगार्डिंग इन्फ्लेशन के बारे में तो यही कहा जाता है कि इन्फ्लेशन इज ए गुड सर्वेंट बट इट कैन बी अ बैड मास्टर। इट इज अ गुड सर्वेंट मीन्स वी नीड इन्फ्लेशन फॉर द सर्वाइवल, for the expansion, for the development of my economy. It serves the economy if it is a servant. But if it is not controlled or checked, it become master. And the master always dictate. That's why this master of inflation will dictate the entire economy and it can destroy the total economy. That is why it should be checked and controlled. इसलिए ध्यान देंगे यहाँ पे, तो यहाँ कंट्रोल करने की बात है। थर्ड है टू अचीव स्टेबिलिटी इन इकोनॉमिक सिचुएशन, मीन्स इन एवरी प्लानिंग यू विल सी दैट द टारगेट वाज हाउ टू स्टेबलाइज द इकोनॉमिक सिचुएशन, को ठीक करना है, स्टेबलाइज करना है। एक्सपेंशन ऑफ द अपॉर्चुनिटीज ऑफ प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट, और प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट को भी बढ़ाने की बात कही गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हो जिससे कि हमारे देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट बढ़े। ज़रूरी है एम्प्लॉयमेंट भी, आज अनएम्प्लॉयमेंट एक भी बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम है इंडिया, तो ये किसी भी देश के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होता है। इसलिए कोई भी देश की पॉलिसी मेकर्स जो होता है ना, दे शुड मेक प्लान्स टू इंगेज मोर एंड मोर पीपल विद द प्रोडक्शन यूनिट्स और प्रोडक्शन activities. That's why the productive employment should be increased. Government should create new opportunity to engage them. Next है extended programs of social welfare, and social welfare means such as जैसे हमारे देश में जो डोल्स मिलते हैं, जो मुफ्त में अनाज है या इस तरह की योजनाएं, अंत्योदय अन्नपूर्णा योजना है, पेंशन योजना, इस दिस टाइप ऑफ सोशल वेलफेयर शुड बी इंक्रीज्ड। इस प्रोग्राम को क्या किया जाए और भी चलाया जाए और भी लोगों तक पहुंचाया जाए, चूँकि इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट, दैट्स वाई द सोसाइटी शुड बी कंसिडर्ड वेरी कॉर्डियली, द गवर्नमेंट कैन नॉट इग्नोर देम, दैट इज वाई द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू एक्सटेंड प्रोग्राम्स फॉर द सोशल वेलफेयर। नेक्स्ट है emphasis on development of agriculture and the industries producing commodities of mass consumption. अब क्या है डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, हाउ टू डेवलप एग्रीकल्चर थ्रू द एग्रीकल्चर प्रोग्राम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ process should be applied, how to increase more and more agriculture productivity, how to increase more and more industrial productivity, तो so that कि और इस तरह से करें कि ताकि लोगों के कंजम्पशन में सहूलियत हो, लोग को एक अच्छी ज़िंदगी मिले। रिमूवल ऑफ पॉवर्टी एंड अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस, इफ़ वी गेट सक्सेस इन दीज प्रोग्राम्स, if we succeeds in
increasing productivity in agriculture sector and productivity in industry sector, we will in a position to control or to check poverty and provide the attainment of self reliance. तो ये सब जब हमारे अगर सक्सीड करेगा तो निश्चित रूप से गरीबी पर भी हम प्रहार करेंगे, गरीबी को हम दूर कर सकते हैं और हमारा अटेनमेंट सेल्फ रिलायंस होगा, यानी हम आत्मनिर्भर भी बन सकते हैं। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशनल फिस्कल एंड अदर मेजर्स फॉर रिड्यूसिंग द सोशियो इकोनॉमिक एंड रीजनल इनइक्वालिटी। अब आप देखिएगा कि हमारे या किसी भी देश में, एक डेवलपिंग कंट्री में या अंडर डेवलप्ड कंट्री में कुछ चीज़ें जो होता है वो इनइक्वालिटीज़ होता है। जैसे कोई रीजन बहुत आगे निकल जाता है जहाँ पे, या कहीं का इकोनॉमी ठीक हो जाता है, सोशल डेवलपमेंट भी होता है, बट कई ऐसे स्टेट्स होते हैं जहाँ पे कि सोशल या इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं पता। जैसे एक एग्जांपल लेंगे बिहार के बारे में। तो बिहार एक है पिछड़ा हुआ राज्य, यहाँ की सोसाइटी भी बहुत पिछड़ी है, इकोनॉमिक रूप से भी हम पिछड़े हैं और हमारा ओवरऑल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बहुत अभी बैकवर्ड कंडीशन में है ना। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम इंस्टीट्यूशनल और फिस्कल उपाय करें पैसा से। बजट के, फिस्कल का मतलब होता है बजट के माध्यम से हम करें, बजटरी पॉलिसी ऐसा बनाएं सो दैट कि इकोनॉमिक और रीजनल इनइक्वालिटी है जो हमारा ब्रिजअप हो और वो ठीक हो। तो ये हमारे देश में जो योजना बनी 5वीं योजना में, ये 5वीं योजना का ये सब टारगेट्स थे। थैंक यू।